এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা মাত্ৰ উদাত্ত ভাষণ গৌৰৱ গগৈৰ যি উদাত্ত ভাষণে এটা টোপনি কাঢ়িছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ উদাত্ত ভাষণেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ঠকা হৰকা কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 15টাকৈ বছৰ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল কিন্তু এই 15টা বছৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ নিজৰ নামত এটা নিউজ চেনেল নুখুলিলে 15টাকৈ বছৰ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল কিন্তু মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ নামত এখন ৰিজৰ্ট নাই এখন চাহ বাগান নাই এনে ধৰণে মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আমাৰ বাবে ৰাজনীতি হৈছে কেৱল মাত্ৰ ৰাইজৰ সেৱা তাত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাথাকে কিন্তু বিজেপিৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ৰাজনীতি হৈছে কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত লাভালাভ তেওঁলোকে জনতাৰ সেৱাৰ বাবে কোনো কাম নকৰে এনে ধৰণে মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ৰামৰ নামত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বাদ দিয়ক বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্য কৰি উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত অসমত মাফিয়া ৰাজ চলি আছে অসমত এতিয়া শান্তি নাই অসমত কেৱল মাত্ৰ মাফিয়া ৰাজ চলি আছে গুণ্ডাৰাজ চলি আছে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আঁচনিতে এতিয়া কেলেংকাৰী হৈ আছে দুৰ্নীতি হৈ আছে তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য যে অহংকাৰে পুতি পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু বেছি দিন নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গাদীখন হেৰুৱাবলৈ গৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰত যেতিয়া আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম সেইদিনাখন প্ৰত্যেকটো হিচাপ আমি লম প্ৰত্যেকটো হিচাপ নিকাচ কৰা হ'ব কাৰণ তেতিয়া আমাৰ হাতত ইডি থাকিব ইনকাম টেক্স থাকিব আৰু সমান্তৰালকৈ সিবিআই থাকিব এনে ধৰণে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ পলিটিক্যাল নিউজ অসমৰ একমাত্ৰ লাখপতি বাইদেউ কোন প্ৰশ্ন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ অসমৰ একমাত্ৰ লাখপতি বাইদেউ কোন ৰামৰ নাম লৈ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ নাম লৈ দেশত ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক বিজেপিয়ে 15 বছৰ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল কিন্তু নিজৰ নামত নিউজ চেনেল নুখুলিলে 15 বছৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল কিন্তু নিজৰ নামত ৰিজৰ্ট নুখুলিলে চাহ বাগান নুখুলিলে অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এতিয়া মুক্তি বিচাৰিছে মই মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈৰ ৰাজনীতিহে কৰিবলৈ আহিছো মই জনতাৰ সেৱাৰ বাবেহে ওলাই আহিছো প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শৰে সকলো কাম কৰি যাম এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ কেৱল ইমানেই নহয় বিজেপিৰ বাবে ধৰ্ম হৈছে ৰাজনীতি ধৰ্ম কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰেহে চাই বিজেপি আৰু ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰে কিন্তু আমাৰ বাবে ৰাজনীতি মানে হৈছে ৰাইজৰ সেৱা মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ দিনত ৰাইজ সুখত নাই ৰাইজ এতিয়া দুখত আছে ৰাইজ শান্তিত নাই এদিন আমি শাসনলৈ আহিম তেতিয়া ইডি সিবিআই ইনকাম টেক্স আমাৰ লগত থাকিব আৰু সেই দিনাখন আমি সকলো হিচাপ কৰিম তেতিয়া আমি প্ৰতিটো হিচাপ কৰিম এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে গাদী হেৰুৱাবলৈ গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাৱণৰ যি ধৰণে অহংকাৰ হৈছিল ঠিক একে ধৰণে অহংকাৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসমতো এতিয়া ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে সেইবাবে দিছপুৰত বহি থকা মানুহবোৰে নিজকে ৰজা বুলি ভাবে ফাঁচী বজাৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণত ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উদাত্ত ভাষণেৰে বিজেপি চৰকাৰক থকা সৰকা কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে আমি ৰাজনীতিলৈ ওলাই আহিছো কেৱল মাত্ৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে। গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন যে অসমৰ একমাত্ৰ লাখপতি বাইদেউ কোন? এই যে লাখপতি বাইদেউ বনাম বুলি কৈ আছে বিজেপি, সেয়া সকলো ভুৱা, সকলো ফেক। অসমত এগৰাকীয়ে লাখপতি বাইদেউ আছে আৰু সেইগৰাকী লাখপতি বাইদেউ কোন সেয়া সকলোৱে জানে। সেই লাখপতি বাইদেউগৰাকী দিছপুৰত বহি আছে। এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। তদুপৰি গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত অসমত ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে। দিছপুৰত বহি থকা সকলে নিজকে ৰজা বুলি ভাবে, তেওঁলোকে প্ৰজাৰ কথা চিন্তা নকৰে, জনতাৰ কথা চিন্তা নকৰে, কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথাহে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি থাকে। এনেধৰণে কটাক্ষ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈ 15 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল, কিন্তু এই 15টা বছৰে তেওঁ কোনো এখন ৰিজৰ্টৰ মালিক নহল, চাহ বাগানৰ মালিক নহল বা কোনো এটা নিউজ চেনেলৰ মালিক নহল। শুনো আহক কি কৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। आज इस साइन बोर्ड में लिखा है मेरा भारत। क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, अपनी छवि इतनी प्यारी है कि वो अपने नाम के लिए एक पूरा अहमदाबाद में एक स्टेडियम बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कबूल नहीं कर सकते कि उनसे गलती हुई। कबूल करने की ये क्षमता उनके पास नहीं है। वो 56 इंच सीना का क्या फायदा जो ये कबूल ना कर सके कि वो एक इंसान है और उससे भी गलती हुई है। उस 56 इंच सीना का क्या फायदा जिसने भारत में नोटबंदी लागू कर कितने करोड़ व्यक्तियों का जीवन आज खत्म कर दिया, उस भूल को वो आज तक कबूल नहीं कर सकते। ये 56 इंच का सीना नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन ये एक बुज़दिल व्यक्ति का उदाहरण है जो कबूल नहीं कर सकता कि उसकी सरकार से गलती हुई, मणिपुर में गलती हुई, नोटबंदी के समय गलती हुई। और आज हम क्या देख रहे हैं? भगवान राम के नाम पर ये वोट मांगते हैं। और अभी पिछली रात साटे जी ने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो भगवान राम के साथ मर्यादा का शब्द जुड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए जिसने 200 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार कर लगभग 3000 वीडियो बनाए। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने गए हैं और भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब हमारी महिला कुश्ती लड़ने वाली खिलाड़ी जब इंसाफ मांग रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटकर उनको जेल लेके गए। वो यूपी का सांसद बृजभूषण सिंह को मदद की इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और चाहे उन्नाव हो चाहे हाथरस हो, हमेशा उन्होंने जो महिलाओं पर उत्पीड़न करते हैं उनका साथ इन्होंने पकड़ा है। तो ये कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। अरे भगवान राम ने तो सीता मैया के लिए लंका को जला दिया, आप तो सारे मणिपुर के महिलाओं को अपने पीठ दिखा दिया। आपने हमारे महिलाओं खिलाड़ियों को के साथ नाइंसाफी की। आपने ऊना और हाथरस के दलित बेटी के साथ आपने नाइंसाफी की। आपने गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों का आपने समर्थन किया। तो किस मर्यादा की हम बात करें?
किस मर्यादा की अपेक्षा करें आपसे? आपकी असली हरकत तो हमने देख ली। कुछ दिन पहले एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड हुआ, उसमें पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जो बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कुछ चंद व्यापारियों के लिए आज सरकार में काम कर रहे हैं, वो बात एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा साबित हो गई सच्ची। क्या देखा हमने? यहां पे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। कुछ हफ्ते पहले आप लोगों का दवाई का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलिए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई हार्ट का मरीज, कोई डायबिटीज का मरीज, कोई किडनी का मरीज, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्वाचन से पहले क्या किया? आपके दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन दवाई के कंपनियों के मालिक ने एसबीआई बॉन्ड के द्वारा बीजेपी को चंदा दिया, बस इसीलिए। ये बात आपको याद रखनी होगी कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ चंद पैसों के चंदे के लिए हमारे बुजुर्गों के दवाई का दाम उन्होंने बढ़ा दिया। कोविड को लेके आज हम सब देख रहे हैं कि कोविड को लेके आज सब पूरा दुनिया कबूल कर रहा है कि इस वैक्सीन के द्वारा ऐसे बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकते हैं। यह बात उस समय भी पता थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा लगा दिया, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि ये दवाई लेते हुए थोड़ा आप सतर्क रहिए। एक चेतावनी भी नहीं दी, सबको मजबूर कराया कि दवाई लेनी पड़ेगी। ये नहीं बोला कि अगर आपके पास हार्ट का कोई समस्या हो, आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ प्रचार से उनका मतलब है, और हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगाकर सबको मजबूर किया कि वैक्सीन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग जो वैक्सीन लेके आज उनके हार्ट अटैक हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, क्या उनका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जब भी सवाल कठिन होता है, उस सवाल से वो मुकर जाते हैं। मणिपुर पर सवाल की, मणिपुर का जवाब नहीं दिया। ब्रिजभूषण सिंह पर जवाब दिया, नहीं दिया। नोटबंदी का जवाब दिया, नहीं दिया। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब दिया, नहीं दिया। तो सर राइस, किस हैसियत से आज वो वोट मांग रहे हैं? अगर अच्छे दिन वास्तविक में आए हैं तो अडानी और अंबानी के आए हैं। अंबानी जी का शादी तो देखा आपने, बहुत धूमधाम से शादी की, इनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। आपको याद है जब नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है, और बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया उस समय। एक गरीब को अपनी बेटी की शादी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कहां से पैसा इकट्ठा कर कर अपने बेटी के शादी पे खर्च करना होता है, वो उनके लिए एक मजाक था। तो देखिए, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। आज ये पूरा का पूरा जो इनका निर्वाचन प्रचार है, झूठ पे आधार है, भय पे आधार है। आज लोग इसलिए मायूस है, इसलिए वोट का आपने देखा जो पोलिंग परसेंटेज है कम हो गया है, क्योंकि लोग मायूस है। 2014 में लोगों ने सोचा विकास होगा, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी होगा। गुवाहाटी आज प्रदूषण के कारण और प्रदूषित हो गया है। ये सारे जो प्रदूषण है हमारे फेफड़ों में आकर आज हमारे अस्थमा के समस्या को और इन्होंने
समस्या कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। लोगों ने सोचा 2019 में कि राष्ट्र हित के लिए हम वोट देने जा रहे हैं, पुलवामा के शहीदों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगा। लेकिन आज जब मणिपुर, जो आज हमारे सीमा से लगा हुआ एक राज्य है, वहां पे हिंसा हो रहा है, तो वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा अब प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं आती। तो लोग मायूस हैं, लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार, इस सरकार के अंदर अहंकार का बीमारी घुस चुका है। पृथ्वीराज साठे जी ने कहा कि यही बीमारी थी जिस बीमारी ने रावण को खत्म किया। नहीं तो रावण भी बहुत शक्तिशाली था, रावण के पास अपार पैसा, अपार धन था, रावण खुद पूजा पाठ में विश्वास करता था, रावण के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसको जब उसके अंदर वासना समाई, जब उसके अंदर अहंकार समाया, तो भगवान राम और उनके वानर सेना से वो हार गए। ये अहंकार का पाठ हमने महाभारत में भी पढ़ा कि कौरवों के पास ताकत थी, कौरवों के पास सेना थी, लेकिन कौरव अहंकारी थे और अहंकार का पराजय हुआ। और यही बात आज हम 2024 में देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अहंकार के कारण आपकी कुर्सी छिटकने वाली है, खिसकने वाली है और लोगों की चुनी हुई इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी और भाजपा समझते थे कि यूपीए की सरकार कमजोर, यूपीए में विभिन्न पार्टियों का गठबंधन 2004 का निर्वाचन नहीं जीत पाएंगे। इंडिया शाइनिंग का उन्होंने नारा दिया था और उनके अहंकार के कारण उनका पराजय हुआ और यूपीए की सरकार हुई और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को संभाला। आज वही 2004 में जो हुआ, आज 20 वर्ष बाद 2024 में होने वाला है। अहंकार सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये अहंकार आज अब दिसपुर तक आ चुकी है कि ये लखपति बाइडो पे आप विश्वास मत करो। मैं भी यही कहना चाहता हूं, ये लखपति बाइडो जुमला है। असम के अंदर आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाले। लखपति बाइडो असम में सिर्फ एक ही हैं, वो हमारी दिसपुर वाली बाइडो। आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाली। एक ही लखपति बाइडो है, वो हमारी दिसपुर वाली बाइडो, जिनकी नजर आपके फैंसी बाजार पे है, जिनकी नजर गुवाहाटी के बड़े बड़े दुकानों पर है। लोग तो डरते हैं कि ये दिसपुर से कॉन्वॉय अगर मेरे घर के सामने से गया तो कल को जाके मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ? ऐसा ही बात ये है आज का राजनीति। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, 15 साल वो असम के मुख्यमंत्री थे, 15 साल वो असम के मुख्यमंत्री थे। आज तक मेरे नाम पर एक भी चाय बागान हमारे परिवार ने नहीं खरीदा। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे माताजी के नाम पर कई न्यूज चैनल पर न्यूज पोर्टल उन्होंने नहीं खोला। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे परिवार के नाम पर कहीं रिजॉर्ट या स्कूल नहीं खोला। क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। प्रायः तरुण गगৈদেৱে সদায় কৈছিল যে राजनीति हल राइज और सेवा কৰা এটা মাধ্যম, और आमी हलो राइज और सेवक।
ৰাইজেহে ৰজা, এয়া হ'ল গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ আদৰ্শ। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ হৈ থকা নাই, ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে। আৰু সেইকাৰণে দিছপুৰত গৈ থকা মানুহবোৰে নিজকে ৰজা ভাবে, নিজকে ৰজা ভাবি আজি গোটেই অসমটো নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবে, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ধাৰণা। पूरे गुवाहाटी को अपना व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं। आज यहां से हाई कोर्ट लिया, उत्तर गुवाहाटी में फेंक दिया। आज यहां से एक फ्लाईओवर बनाया, किसी को चाहिए नहीं पर फ्लाईओवर हम बनाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले जोरहाट होके आया। जोरहाट में लोग चिंतित कि जो बीमारी गुवाहाटी में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री मतलब हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, और वो बीमारी जोरहाट में लेके आए। मैंने पूछा क्या बीमारी, तो जोरहाट के लोगों ने बोला कि सर देखो, जिस प्रकार से गुवाहाटी में बिना वजह फ्लाईओवर बना रहे हैं, आज हमारे यहाँ जोरहाट में एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिस फ्लाईओवर के बनने से पूरा बाजार चौपट हो जाएगा। मैंने बोला यही गुवाहाटी में हो रहा है। जोरहाट के लोग मुझे बोल रहे हैं कि देखिए सर, ये हमारा डीसी का बंगलो ये करीब है हमारे पास, अगर हमें कुछ काम हो डीसी प्रशासन से, सर्कल ऑफिसर से, करीब में हमारा ये ऑफिस है, हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उसको सिनामोरा लेके जाए। मैंने बोला यही गुवाहाटी में भी हो रहा है, हाईकोर्ट उठा के कहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके एक बड़ा माफिया चल रहा है असम के अंदर, एक बड़ा स्कैम चल रहा है असम के अंदर। और जब हमारी ये सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तब तो इनकम टैक्स हमारे साथ होगा ना, तब तो ईडी हमारे साथ होगी। ये पूरा का पूरा हम हिसाब निकालेंगे, सबका हिसाब निकाला जाएगा, एक एक पैसा का हिसाब हम निकालेंगे। आज लोग मायूस हो चुके हैं, लोग थक चुके हैं इस भाजपा के अहंकार से, ये दिसपुर के कुछ मंत्रियों के आतंक से आज लोग थक चुके हैं। अरे इनके साथ तो इनका पार्टी भी इनके साथ नहीं है, इनके पार्टी के लोग आज नीचे नीचे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिस सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी का पैर पकड़कर हिमंत बिश्व शर्मा जी भाजपा में शामिल हुए, आज उसी को परे कर दिया। जिस श्रीमती विजय चक्रवर्ती बाइडो का पैर पकड़कर आशीर्वाद लेकर भाजपा में शामिल हुए, आज हिमंत बिश्व शर्मा जी ने आज उनको परे कर दिया। जिस असम गण परिषद के पार्टी के पीठ पर चढ़कर भाजपा सरकार आई, आज असम गण परिषद में पूरे असम के अंदर फेज 1 में ना जोरहाट में सीट मिला, ना काजीरंगा में सीट मिला, ना सोनितपुर में सीट मिला, पूरा अपर असम में एजीपी को साफ कर दिया। तो इनके साथ ये उनकी पार्टी है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये सच्चाई अब उनको भी पता चल चुका है, इसलिए इनका अभी थोड़ा अस्थिर है, इसलिए कुछ हमारे युवा मंत्री देखा अमित शाह जी के रोड शो के समय महिलाओं पर हाथ लगा रहे हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हिमंत बिश्व शर्मा जी के सबसे चहेते युवा मंत्री हमारे असम के महिलाओं के कंधों पे हाथ रखकर उनका अत्याचार किया, उनका अपमान किया। माफी मांगनी चाहिए हमारे असम के महिलाओं से। इतना अहंकार, इतना आतंक अच्छी बात नहीं है कि हिंदू धर्म हमारा सबका है। सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये सनातन धर्म भाजपा से पहले भी था, कांग्रेस पार्टी से पहले भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले भी था और रहेगा।
हमारे जाने के बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म रहेगा। इसीलिए किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष राजनीतिक दल की सर्टिफिकेट की हमारी जरूरत नहीं है कि हमारा धर्म हमें समझाएं। हम अपना धर्म इन राजनीतिक दलों से और इन राजनीतिक नेताओं से और बेहतर हम जानते हैं। इनकी जरूरत नहीं है। धर्म का स्थान मंदिर में है, धर्म का स्थान हमारे घर में है। राम हर कण में है, राम हम सब में है, लेकिन राम का स्थान किसी निर्वाचन की सभा में नहीं होना चाहिए। भगवान राम का स्थान किसी राजनीतिक नेता के भाषण के बीच में नहीं होना चाहिए। भगवान राम के नाम पर कोई दल वोट नहीं मांगना चाहिए। ये हमारे धर्म के प्रति निरादर है। धर्म का स्थान धर्म और राजनीति का स्थान राजनीति। ना राजनीति को हमें धार्मिक बनाना है, ना धर्म को हमें राजनीतिकरण करना है। सच्चा हिंदू वो जो मर्यादा पे विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो सभी धर्मों को सम्मान करता हो। सच्चा हिंदू वो जो संयम पर विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो कमजोर को मदद करता हो। सच्चा हिंदू वो जो अगर किसी पर अत्याचार कर रहा हो तो उस अत्याचार को रोकेगा। सच्चा हिंदू वो जो समाज में सद्भावना बांटता है। हमें सच्चा हिंदू बनना है। भारत एक धार्मिक देश है और हर धर्म हमें सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना। अच्छी बात नहीं है कि हिंदू धर्म हमारा सबका है। सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये सनातन धर्म भाजपा से पहले भी था, कांग्रेस पार्टी से पहले भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले भी था और रहेगा। हमारे जाने के बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म रहेगा। इसीलिए किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष राजनीतिक दल की सर्टिफिकेट की हमारी जरूरत नहीं है कि हमारा धर्म हमें समझाएं। हम अपना धर्म इन राजनीतिक दलों से और इन राजनीतिक नेताओं से और बेहतर हम जानते हैं। इनकी जरूरत नहीं है। धर्म का स्थान मंदिर में है, धर्म का स्थान हमारे घर में है। राम हर कण में है, राम हम सब में है, लेकिन राम का स्थान किसी निर्वाचन की सभा में नहीं होना चाहिए। भगवान राम का स्थान किसी राजनीतिक नेता के भाषण के बीच में नहीं होना चाहिए। भगवान राम के नाम पर कोई दल वोट नहीं मांगना चाहिए। ये हमारे धर्म के प्रति निरादर है। धर्म का स्थान धर्म और राजनीति का स्थान राजनीति। ना राजनीति को हमें धार्मिक बनाना है, ना धर्म को हमें राजनीतिकरण करना है। सच्चा हिंदू वो जो मर्यादा पे विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो सभी धर्मों को सम्मान करता हो। सच्चा हिंदू वो जो संयम। এনিটক্স, সুতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।